Rashtriya Swayamsevak Sangh Meghalaya commemorate the death anniversary of Uttarat Singh's AM on the 17th of July 2024 at Mani Singh Gurung Auditorium, Gorkha Pathshala Higher Secondary School, Upper Marlborough, Shillong. Shri Pradeep Ji Joshi, All India Co-Prachar Pramukh of RSS, was the chief speaker of the event. He mentioned the contribution and significance of Uttarat Singh not only to his own province but also to the motherland of Bharat. A musical group from Pinter performed a song based on the freedom fighter Uttarat Singh to adorn the program.
kekuatannya maka ditutup. Kira-kira tinggi di bakal kanan. Kira-kira tinggi dari doni. Dari doni. Dari doni. I am participating in this program. 17 July is the death anniversary of our great freedom fighter, Hiroshi. On this occasion, we all like-minded people get together here for that celebration. On this occasion, we are remembering his personality, his devotion, his dedication for our Bharat. Why you Gurab Singh fight against British rule? Maybe this question arises in your mind itself. I am putting some subject in front of you for fulfilling that title. We all know that our Bharat is a very, very long-run nation in this world. Still, there is a debate going on. In school syllabus, we learn about Mohenjo-daro and Harappa civilization. But now, after that, we have added more archaeological sites, those who are more older than that. You know that Rakhi Gadi is there, near Haryana, Sonipat, Panipat, there is a Rakhi Gadi. It is nearly more than 4,000 years before that civilization, Harappa and Mohenjo-daro. That means our country is running from last long period of the history. We are running our nation, probably it is appear that. What is the driving force of our nation? What is our driving force of nation? So most of the people know that our driving force of the nation is the spiritual, our thinking process is the main driving force of our nation. भारत का विचार ये अध्यात्म का विचार है. That comes in all life of the sections of the life. जीवन के सभी अंगों में उसका हमको परिणाम दिखाई देता है. वो सामाजिक जीवन हो, सांस्कृतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीति का जीवन हो, युद्ध नीति का जीवन हो, विदेश नीति का जीवन हो. तो हमारे देश का ड्राइविंग फोर्स ये अध्यात्म रहा, स्पिरिचुअलिटी रहा, और उसके कारण हमारे जीवन के सभी सेक्शंस में अध्यात्म आधारित हमारा विकास हुआ, जो आज भी दुनिया में दिखता है. There are many symptoms. We can collect all these things. That other subject will be there. But there are symptoms. One of our कार्यकर्ता from Arunachal Pradesh, he was a very good officer. He went there in America. For what purpose he went there? He knows that Arunachal is from Nishi tribe, they are tribal peoples. He heard that like our tribal life, there is a life in America also, Mayan Sanskruti. All these peoples are there. So he went there. After going there, he went to some village. He saw all life style is just similar, common to us, synonymous to us. तो घर में आग जलाने की जगह कैसी है, खाना बनाने की पद्धति क्या है, अतिथि का सम्मान करने का प्रकार क्या है,
दिनचर्या का प्रकार क्या है, बर्तन रखने की जगह क्या है, ऑल दीज थिंग्स कॉमनली हैपन देयर आल्सो। केवल इतना ही नहीं, अरुणाचल में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, RGU जिसको बोलते हैं, ईटानगर के बेसी निकाला है। One of our sister, his name is Nikamuni Kamti. He is a music teacher. While doing his PhD, he has done his PhD on subject dancing and their various expression in the tribal areas. हमारे जनजाति में नाचना ये स्वभाव है। सुख दुख में तो नहीं, सुख में आनंद होते समय हम नृत्य करके अपने आप को, जैसे अभी यहाँ पर एक तिरुप सिंह का गाना गाया तो बड़ा अच्छा सबको लगा। नृत्य गायन ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। तो ये लिखा उन्होंने क्या किया कि उसका जो PhD का सब्जेक्ट था, उसने देखा कि जनजातीय नृत्य के समय मुद्राएं बनाते हैं। नाचते समय हमारी मातृशक्ति कुछ ना कुछ मुद्राएं बनाती है। बारिश आने वाला है, हवा चलने वाली है, खेती के दिन आ गए हैं, फसल आने वाली है, प्रियकर आने वाला है। That message is going by that mudra, that finger style there. What we see that not within only Arunachal, even in Northeast, all these mudras are same. लगभग उन्होंने 58 ट्राइब के मुद्राओं का कलेक्शन किया। मुद्राओं का कलेक्शन करने के बाद उसने PhD सबमिट किया, डॉक्टरेट। नृत्य में, डांसिंग में उनको डॉक्टरेट मिला इस विषय में। जब इसकी चर्चा निकली तो स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि हम तो सुनते हैं, हमारी दुनिया में हमारे लोग इधर उधर गए थे, तो गवर्नमेंट हैज गिवन प्रपोजल दैट कि शुड बी विजिट अमेरिका, सेम राइट, Mayan Sanskriti, Red Indians, all that things. But from there, same type of mudra while making dance, they are doing also there. तो हमारी सिविलाइजेशन एक अलग प्रकार का एक मेथोडोलॉजी लेकर चलती है। तो there were some of the university were there, but teaching of the society, learning of the society, passing information within society, that was continuous process happening time by time. That was there. So ये बताता है कि हमारा जीवन ये अध्यात्म का जीवन था, उसी में हमने अपनी प्रगति का एक नया उच्चारण बनाया। Making our main base as a spirituality, our country developed for long time. उसका परिणाम क्या हुआ? तो those who are learned people they know. Our India was number 1 in GDP, more than 1300 years. India was on first position. आज जैसे अमेरिका, इंग्लैंड का नाम लेते हैं, चाइना का नाम लेते हैं, तो भारत का भी उस प्रकार के नाम था। India was on the first position. Its GDP was more than 29-30%. It means our tribal people were also included in that process, economical development process. There were that teaching was, that learning is, that making that technology, all these things are going there. So हमारा एक जीवन समृद्ध जीवन था। So on that basis we were, a spatial society unfoldment was going here within our country. That contribution of our society for nation, not only for nation, for all world, but that was different. So that was our main focus of our subject. What happens that we know that some of the invaders come from our snatching our wealth. आक्रमण करने वाले लोगों ने भारत की संपत्ति को लूटने के लिए थे, वो मुगल हो, चंगेज खान जैसे बहादुर के लोग हो, अलग अलग प्रकार के लोग दुनिया भर से आए। यवन आए, हुन आए, शक आ गए, जो मुगल आ गए, ऑल दिस केम्स फॉर जस्ट स्नैचिंग आवर संपत्ति। भारत पर राज्य करना है ये तो नहीं था, भारत को लूटना है। ये होते होते
हमारे देश का जो विकास का योगदान का क्रम था, that process was stopped by these all invaders. उसके बीच में ब्रिटिश आ गए, then British came here. So that was a new fight was going on. What happens there? Those invaders came out just to invade भारत. भारत पर आक्रमण करना है, लूटना है, मन गया तो राज्य करना है. इस प्रकार का विचार करने वाले लोगों ने भारत पर डायरेक्ट आक्रमण किया था. देखो डायरेक्ट उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, मठ मंदिर तोड़ दिया, साधु संतों की हत्या की, हमारे यात्रा होने पर बैन लगा दिया. आपको भी पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देता है. Islamic British before British rule, what was happening here within our country? That was one part of history. Then came British here. So British saw that it is a bigger country than their country. Still not. हमको मालूम है ब्रिटिश बहुत छोटा सा प्रांत है. हमारा देश आज जो 140 करोड़ का है वो तो 20 करोड़ के आसपास है. हाँ, बहुत बड़ा देश है हमारा. उस समय भी था. तो ब्रिटिशों को डर गया कि यहाँ राज्य करना है, तो उन्होंने अलग प्रकार की अपनी व्यवस्था निकाली. राज्य करने को तो विचार नहीं किया. फर्स्टली दे केम फ्रॉम ओनली इकोनॉमिकल अफेयर्स. भारत में व्यापार करना है, बिजनेस करना है, इस नाते से है. और उन्होंने देखा कि the society is divided here. Society is not caring of laborers here. Society is not thinking about nation here. ये देखने के बाद अंग्रेजों को लगा नहीं, this is the place we can rule here. So they tried to rule here more than 175 years. British rule here. It is a matter to be studied. How British rule here. Are they civilized? Are their government was civilized? Then when we go through that, we know that the aim of the British was not only to make here गुलाम बनाना नहीं है, केवल यहाँ पर इन्वेजन करके हुए यहाँ रूल करना नहीं है. They want to snatch all wealth. आपको मालूम है ना? That Mr. Shashi Tharoor has written one book, Era of the Darkness. In that book, what he written? He said that more than $45 trillion हमारी देश की इकोनॉमी आज 3.5-4 के आसपास है. $45 trillion उस समय के भारत से उन्होंने लूट कर अपने देश में लेकर गया. They have snatched all wealth from here. That was motto of that wealth, taking wealth away from us. That was also motto of their British rule. Not even that. They disturb our all systems, our social system, our cultural system, our education system, our medical system, our judiciary system. All these systems were broken by, disturbed by British rule. That could be studied. Youth Europe seeing height of that. He saw the Britishers are snatching our wealth. They are taking ownership of all these fields, our area. They are using our wealth as their own property. That was the main motto of that. So Britishers' motto was that snatching our wealth them. Not only that, their another motto was they just want to create Christianity, more population, Christian people here also, throughout India also. So Britishers' rule has 3 aims. भारत पर राज्य करना है, भारत में क्रिश्चियनिटी बढ़ाना है, भारत की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड में लेकर जाना है. Just making rule here, snatching wealth from here, and providing Christianity to this society. यूथ विरोध सिंह उसके विरुद्ध लड़े हैं. यूथ विरोध सिंह का जो प्रेरणा है उनको ध्यान में आ गया है कि ये जो लोग हैं ये हमारे देश के लिए हैं. They are foreigners. Their rule is foreign rule.
though their perception is going up, some people are coming track that. वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे समाज के हित का नहीं है, वो हमारे जमीन का हित का नहीं है, हमारे धर्म का हित का नहीं है, ब्रिटिश इसके विरुद्ध जा रहा है। ये तिरोत सिंह को मालूम होने के बाद उनके मन में आता है कि इसको विरोध करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने 4 साल तक लंबी लड़ाई, 4 years फाइट विद ब्रिटिशर्स। जरूर ब्रिटिशर के बाद ज्यादा एजुकेशन होने के कारण वो संभव नहीं था, लेकिन 4 years he has fought for against Britishers by doing law that came in our history also. The motto of the Europeans was that these people from foreigners, they come to our disturb us. They are disturbing our religion, they are disturbing our social rules, they are disturbing our cultural programs, ethics, they are disturbing our economical progress. So all these things should be studied and put in the table for public domain also. I am telling another example. You know that Chhattisgarh, it is Jharkhand, Chhattisgarh, it is called as Chota Nagpur. It is also tribal area. आज का जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, it is called as Chota Nagpur area. When Britishers tried to establish their government there, one Mr. Jervis Mill, he has written the book, biography of Jervis Mill. What he written that when he has got the order that you should go and try to establish government in Chota Nagpur area, he went there, with some soldier, he went there. Now what we see, जब वो सामने गया तो उसको दिखाई दिया कि वहां पर जनरल जातीय लोग एक लाइन में ऐसे खड़े हैं, उसके पीछे दूसरी लाइन है, उसके पीछे तीसरी लाइन है। Some people are drums बजा रहे, उनके हाथ में तीर है, उनके हाथ में भाला है। The formation is not that. तो ये डेविस मेली कहता है कि प्लीज पीपल्स गिव अस द वे, we are commanding this area, we want to establish our government here, please give us way. देखता है वो हटता ही नहीं, जाने के लिए तैयार नहीं। तो बाद में डेविस मेली कहता है कि मैंने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया फायर। ऐसा फायर करने के बाद ऐसा लगा कि 2-4 लोग मर जाने के बाद सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन उसको आश्चर्य हुआ, उसने फायर करने के बाद पहले लाइन के लगभग 40 लोग मर गए, गिर गए, अपने मातृभूमि के लिए गिरते गए। तुरंत तो दूसरी लाइन आ गई। अब उसको आश्चर्य लगा, ड्रम बज रहा है और लोग मरने के लिए सामने आ रहे हैं। उसने अपने बायोग्राफी में लिखा है, हम कभी युद्ध जीता नहीं है, आई डोंट नो, वी आर नॉट विनर, ये तो हमारा रूल है, ये तो हमको पराभव हो गया, हम कुछ किससे लड़े, हम तो लड़े नहीं। जिनके पास केवल तीर था, जिनके पास भाला था, हमारे पास बंदूकें थी, इसलिए हम मार रहे। लेकिन मरते समय कभी हमने ये नहीं देखा कि सामने वाला रो रहा है, सामने वाला दया मांग रहा है, सामने वाला भागते जा रहा है, एक भी आदमी भागता नहीं था। तो दैट वाज द बॉन्डिंग ऑफ ट्राइबल पीपल विद आवर लैंड्स। गुरु गोरख सिंह का उसी भावना का अपने जन्म से साथ, अपने भूमि के साथ लड़ना, अपने भूमि के लिए लड़ना, फाइट फॉर आवर मदरलैंड, फाइट फॉर आवर मदरलैंड, ये उसका एक प्रकार से डिजाइन हमको दिखाई देता है। ये जेविस मेली कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, इतने साल के बाद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जनरल जातियों में इतनी मातृभक्ति कौन लाया, इतनी भारत माता के अपने जमीन के प्रति भक्ति कौन करा। दैट वाज मेन इंस्पिरेशन। ये हमारी माँ है, ये हमारी अनेक विषयों का पोषण करने वाली माँ है, उसके लिए मुझे उसकी रक्षा करने का दायित्व मेरा। ये भाव जैसे तिरोत सिंह में है, वैसे देश के अनेक प्रकार के जनजातीय क्षेत्र में हमको दिखाई देता है। ये बड़ी लहर चली, हमारा जो स्वतंत्रता का युद्ध चला है, स्वतंत्रता का आंदोलन चला है, उसके लिए तिरोत सिंह जैसे जो पर्सनैलिटी है, दे आर लाइक लाइट लैम्प, हमारे एक प्रकार से दीप स्तंभ है, जिनके तरफ देखने से हमको भी मन में आता है, उनके जैसी भारत भक्ति हमारे मन में भी आना चाहिए। You to see fight for that inspiration. उनको ध्यान में आ गया कि नहीं,
ये लड़ाई मुझे लड़नी है। ये जो बाहर के लोग आए हैं, दे आर फॉरेनर्स, दे आर वांट टू रूल हियर, दे आर स्नैचिंग आवर वेल्थ, दे आर स्नैचिंग आवर प्रॉपर्टीज, वी शुड फाइट अगेंस्ट दैट। दैट वाज इंस्पिरेशन। मुझे लगता है ये हमको समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। We know that in this all process throughout India, all people fight against that British rule. मैं उसके नाम नहीं लूँगा, हर प्रांत के अपने अपने नाम हैं। We just concluded our 2 years before we have concluded our आजादी का अमृत महोत्सव, 75 years of freedom rights. उसमें we have remember many of the peoples like you, Tirupati Singh, in throughout India. They fight for our total nation. They are not people of only one tribe. They are not people of one area. They are people, those who are thinking about total भारत. भारत के लिए लड़ना है, भारत के समाज के लिए लड़ना है। इस भावना से विचार करने वाले टिरोत सिंह जैसे जीवन की प्रेरणा आज भी हमको मिलती हुई दिखाई देती है। तो that was the main focus that should be learned from you, Tirot Singh, freedom fighter, as a freedom fighter. लेकिन अभी हमको टिरोत सिंह के जीवन का संदेश क्या है? What should we take? We should take message from that Tirot Singh life. So I am telling one some points to you about that you should think on the process. Well, in British Parliament there was a discussion whether we have to freedom to India or not. That was a discussion 1946 February. Before passing that resolution. In that debate, Mr. Winston Churchill, he was the ex-prime minister, he was the hero of the Second World War, he stand up. What he said in that British Parliament, he said, you are giving freedom to India. See, they will not put united. भारत एक नहीं रह जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, that will must divided, that will go for division. केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने क्या किया? They cannot feed their people. वो भारत अपना आधार नहीं बना पा रहे, उसको स्वतंत्रता दे रहे, भूखा मर जाएगा। ये विंस्टन चर्चिल का भाषण है। भारत को स्वतंत्रता देने के पहले दुनिया के लोग भारत के बारे में कैसे सोचते होंगे, इसका विचार आपने करना चाहिए। जब हम टिरोत सिंह के पुण्य स्मरण का विचार कर रहे हैं, तब हमको आज के परिस्थिति में भारत का विचार क्या ले जाना है, इसके लिए मैं कुछ जानकारी आपके सामने रखने की प्रयत्न करूं। एक फिनोमेना एंड क्रोनोलॉजी आपके सामने रखने की चेष्टा करूं। 15 अगस्त 1947 को बड़े परिश्रम के बड़े योजना के बाद उसमें राजनेता है, क्रांतिकारक है, समाज सुधारक है, ऑल दिस पुट टुगेदर वी गॉट फ्रीडम। That was एक 8 point happened. What happens then? We know that after 15 August 1947 up to 26 January 1950, there was a partial British rule on us also. क्योंकि उस समय हमारे देश में माउंटबैटन वही था, आर्मी चीफ वही थे, देश के सेक्रेटरी बड़ी मात्रा में वही थे। ऑल ब्यूरोक्रेसी वाज दैट द ब्रिटिश रूल। Even after we get freedom, while making our constitution, that takes many long time, 2.5 years nearly. 26 जनवरी 1950 को हमको देश का कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उसके बाद हमारे देश का पूर्णतः रूल हमारे हाथ में आया। तो दैट वाज द वन फिनोमेना। लेकिन हमारे देश में स्वतंत्रता होते समय some baggages put on us by British rule. What was that? ब्रिटिश ने यहाँ पर राज्य करते समय कुछ प्रोसेस चलाई। British has driven some process to demoralize us. Lala Lajpat Rai was the leader of like a freedom fighter from Punjab. He has written one book. In his book, what he read, he said, denationalize, deconceptualize, desocialize was the 3 main points of the British rules. भारत के लोगों को देशभक्ति से दूर ले जाओ, संस्कृति से दूर हटाओ,
और समाज के बारे में उनके मन में संभ्रम पैदा करो। ये ब्रिटिश की स्टाइल है। फॉर दैट दे ड्रिवन मेनी कॉन्स्पिरेसी इन आवर एरिया, इन आवर मेन सिस्टम्स। डीनेशनलाइज, हम भारत एक नहीं थे। We British came and we put you all to work together in one state nation. Your nation in the making. ये उन्होंने फैला है। भारत हमने निर्माण किया, पहले तो आपका भारत था ही नहीं। आपके सोसाइटी में कोई लेन देन की बात ही नहीं। आपका ज्ञान क्या है? एक छोटे से आदमी ने 4 किताब, आपका ज्ञान है। अरे दुनिया में देखो कितना नॉलेज भरा हुआ है। दुनिया में देखो कितनी चीजों पर आगे बढ़ने की चेष्टा हो रही है। आप यहाँ पर क्या होता है? So that phenomena also put on our mindset, भारत का कोई योगदान। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि यू आर कल्चरली बैकवर्ड। हमारे यहाँ सांप की पूजा होती है, हमारे यहाँ चिड़िया को खाना डालते हैं, दिस इज बैकवर्ड। तो हमारे परसेप्शन को उन्होंने बताने की चेष्टा की उनके प्रोसेस के द्वारा। आज भी हमको उसके कारण उसके साथ लड़ते हुए दिखाई देता है। मैं स्वतंत्रता के आंदोलन को जोड़ते समय इस विषय को आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। द इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज आवर सोसाइटी। कुछ सिंड्रोम से लगे, कुछ लक्षण हमारे इसमें ब्रिटिश रूल के कारण आ गए। सम इंप्रेशन कैरी फॉरवर्ड स्टिल नाउ। हम उससे मुक्ति ले गए। जब हम यूरोप सिंह के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे मन में आना चाहिए जो ब्रिटिश रूल का जो एक आज भी सिम्टम हमारे मन में दिखता है। कौन से सिम्टम दिखाई देता है हमारे मन में आज भी आता है। और सोसाइटी इज अ कॉन्स्पिरेसी दैट स्टिल नाउ एक्टिवेट हियर। पहली चीज कौन सी आती है? वी आर इनकॉम्पिटेंट। लोगों को लगता है हम अपात्र हैं। हम जनरल जाति है। अंग्रेजों ने कहा ना, जनरल जाति के पास क्या नॉलेज है, जनरल जाति के पास क्या सोसाइटी का नियम है। आपके पास कोई जुडिशियरी है, आपका कोई ज्ञान है? कुछ नहीं है। आपका कोई लिखा हुआ लेटर है, आपके पास लिखा हुआ कोई बड़ा किताब है? कुछ नहीं है। इसलिए आप बहुत बैकवर्ड है। ऐसा है क्या? हम खासी समाज के लोग, वी आर पीपल फ्रॉम खासी, डिडंट वी हैव हिस्ट्री? वी हैव हिस्ट्री। वी हैव अ सोशल सिस्टम, we have a cultural program, we have our own judicial system, we have our economical ethics and all these things still there। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, आप इनकॉम्पिटेंट हो, आप इररिलेवेंट हो, you are the people irrelevant of Rasamino। Like that Britishers has put some, भाई आप inferior हो, incompetent हो, irrelevant हो, आप सबको भावना रखने वाले लोग। All these baggages are put on our head by British conspiracy. Still we are fighting for that। जब हम यूरोप सिंह के विचार पर अब पुण्यतिथि का उनका स्मरण करते हैं तब हमको इन बैगेजेस से दूर जाना है। हमारे मन में आज भी जो गुलामी के मानसिकता के कुछ न कुछ चिन्ह दिखते हैं। Still there are many symptoms that are connected with British rule. We should free from that। उससे दूर निकलना। That is necessity of ours। That process should be accelerated। मैं अभी आपके सामने जो बता रहा हूँ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कल्पना करें, भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को रिपब्लिक डे करके अपनी मान्यता मिली। मैं 10 साल का आपके सामने हिसाब रख रहा हूँ। फर्स्ट 10 ईयर 12 डिकेड 1951 to 1960, that was first decade। उस फर्स्ट डिकेड में हमारा देश का डेवलपमेंट का मॉडल क्या हो? व्हाट शुड बी आवर डेवलपमेंट मॉडल? वेदर वी आर गोइंग बिहाइंड अमेरिका और रशिया, दैट वाज डायलेमा देयर। अमेरिका के पीछे जाना है कि रशिया के पीछे जाना है? हमारा अपना मार्ग है। आवर ओन मॉडल वाज देयर, दैट वाज नॉट कॉन्फिडेंस। हमारे उस समय के रूलर्स में इस प्रकार का होना ही नहीं था। हमारा अपना कुछ पद हो सकता है, हम भी एक दुनिया को देने लायक लोग थे, ये विश्वास ही नहीं था। इसलिए पहले 10 साल उसकी चर्चा में निकल गए। व्हाट शुड बी आवर डेवलपमेंट पाथ? दूसरे डिकेड में हमारे देश पर 3 आक्रमण हुए, 1962, 1965, 1971। पाकिस्तान के 2, चाइना का 1।
चाइना जस्ट टेक और टेस्ट, उन्होंने टेस्ट किया कि हम भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत की रिएक्शन क्या है। यू वांट टू टेस्ट दैट, जस्ट टू गिव मैसेज कि भारत स्वतंत्र हुआ है लेकिन वी आर सुप्रीम हियर। भारत के पास रिएक्शन क्या है, वो टेस्ट करना चाहता था, इसलिए आप देशपुर तक आया, निकल गया। दैट नो वी ऑल दिस नो अबाउट दैट चाइना और दैट मेनी स्टोरीज ऑफ दैट, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स। पाकिस्तान की बात क्या थी, पाकिस्तान नाम का तो देश हमारे देश से बना हुआ है, लेकिन अमेरिका में उसने उस समय पाकिस्तान को ताकत दी, उन्होंने भारत के विरुद्ध खड़ा कर दिया। दैट पाकिस्तान वाज प्रॉम्प्टेड बाय यूएस, ऑल एमिनेशन दैट पुट बाय यूएस, उसका परिणाम क्या हुआ, हमारे देश के विरुद्ध पाकिस्तान युद्ध करने के खड़ा करने के लिए तैयार हो गए। 65 युद्ध उन्होंने जबरदस्ती हमारे देश पर लगा। 1971 में तो उससे भी खराब हो गया। पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान का इनर सिस्टम एक प्रकार से रुइन हो गया। दैट ईस्टर्न पाकिस्तान approached to our nation, asked for help, then that minister has given some, prime minister has given some help, तो उस समय बांग्लादेश का निर्माण। तो ये कि दूसरा डिकेड हमारे वॉर एंड दैट प्रोविजन, उसके लिए क्या करना, इसकी चिंता में नहीं करना। थर्ड डिकेड में हमारे देश में अपने देश के बारे में कुछ विचार करना है क्या, इसका चर्चा प्रारंभ हो गया। You know that at that time many nationalization of the banks, nationalization of some PSU that happened there. हमारे देश का पहली बार फर्स्ट पोखरण टेस्ट हुआ, एटम बॉम्ब टेस्ट 1974। हमारे देश में, हमारे देश की थोड़ी बहुत अस्मिता शुरू, लेकिन उस समय क्या हो गया, हमारे देश में हमने जो लोकतंत्र के लिए जो डेमोक्रेटिक मॉडल लिया था, ये जो डेमोक्रेसी ली थी, संसदीय सिस्टम ली थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट की थी, उस पर आघात हो गया। तो दैट पुट इन जेल, सो दैट वाज इमरजेंसी डिक्लेयर हियर। 19 months has gone in that fashion। लोगों का नुकसान हो गया, उससे बाहर निकलने के लिए जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रयत्न होगा, वो भी फेल हो गया। तो हमारा थर्ड डिकेड उसमें निकल गया। फोर्थ डिकेड में पहली बार हम अपने देश के साथ कुछ करने के लिए खड़े हुए। That feeling was happening that in the fourth decade we must go forward. Some rallies are coming up. कुछ चीजें हमारे देश में होने लायक बनने के लिए, कुछ विषयों में हम सामने आ गए। सैटेलाइट हमारा अपने हाथ में आ गया, हम अपने देश के विषयों के साथ जुड़ने के लिए बने। कंप्यूटर अडॉप्ट हो गया, हमने देश में कंप्यूटर में प्रशिक्षण शुरू कर दिया। तो दैट थिंग्स हैपन। लेकिन ऐसे समय में जब पांचवा डिकेड आया 1992-91 के आस, आपको मालूम है उस समय दुनिया में दो चर्चा चली, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। रशिया में चला ना, पेरिस ट्राइका वगैरह जिसको बोलते हैं, और उसके कारण दुनिया ने अपना एक नया कॉन्स्पिरेसी बनाया कि अभी देश को गुलाम करना तो संभव नहीं है, तो मेक सम रूल बाय सम इंस्टीट्यूशन। यूनो जैसे संस्था नए प्रकार के फॉर्मेट में आ गया। वी नो दैट WTO आ गया, IMF आ गया, IPR आ गया, ग्लोबलाइजेशन का नया डेफिनेशन आ गया। हम खड़े होकर कदम डालने के लिए तैयार थे, हमारे पैर में फिर भिड़ी आ गई। We will push backward। उसके बाद पहली बार उस चक्र से बाहर हमारा देश निकला है वो 1998 में, जब हमारे देश में सेकंड पोखरण हुआ, सेकंड एटम बॉम्ब का टेस्ट हुआ। दैट वाज मिरेकल। हमारे देश में इस प्रकार का साइंस का टेस्ट हो सकता है, दुनिया सोचे नहीं। दैट वाज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम व्हेन सेकंड पोखरण टेस्ट हैपेंड। That technology was the biggest technology. That was the foremost advanced technology. The world was only thinking on that. We provided a unit, we provided a machine. So they didn't accept it. Some restriction. So like that we gave new renaissance. From that period we are getting our nation as a coming forward nation. अभी हमारा देश आगे जाते हुए देख रहा है। गत 25 साल से हमारे देश में एक नई प्रकार की चर्चा चल रही है। वी आर चेंजिंग आवर कंट्री। हमारा देश बदलते जा रहा है। हमारा देश अभी भूखा देश नहीं है। हमारे देश को तोड़ने की ताकत किसमें नहीं है।
हमारे देश में हम लोग गरीबी से दूर निकलने का एक बड़ा प्रकार से प्रयत्न चालू हो गया। हमारे देश में कनेक्टिविटी बदल गई है। मैं तो नॉर्थ ईस्ट में मैं भी रहा हूँ। आई वाज देयर इन अरुणाचल फॉर मोर देन 8 years. I know that many people have started their discussion on development, that some development should be done. अभी डेवलपमेंट आ गया तो लोगों को आगे जाने की इच्छा होती है। तो धीरे धीरे हमारे देश का एक नया चित्र सामने आना खड़ा हो गया है। तो अभी अगर हम यूपीओ की जो एक प्रकार से स्मरण करते हैं, तो आज के परिस्थिति में देश के लिए क्या करना, in this today's concept, what should be our responsibility to put our country forward? तो हमको ध्यान रखना है, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और country getting more and more recognition from the world leaders we are observing all this. आज हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट लोगों का बड़ा एक प्रकार से श्रेष्ठता बढ़ी है। You know that चंद्रयान, आफ्टर मेकिंग दैट चंद्रयान, हमारे देश का चंद्रयान हो गया चंद्र। तो इसरो जैसी संगठन, इसरो ऑर्गेनाइजेशन कहता है वी आर विलिंग टू मेकिंग हैंड होल्डिंग विद आवर नासा इज आल्सो ट्राइंग टू हैंड होल्ड विद इसरो। दैट इज दैट फिनोमेना हैपनिंग हियर। अभी तक हम बोले थे नासा सब कुछ करे, अभी नासा कह रहा है नहीं, हम भारत के साथ हमको हाथ मिलाना है, भारत का टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा है, भारत का टेक्नोलॉजी बहुत अफोर्डेबल है। 600 करोड़ में इतना बड़ा याद हो रहा है, हमारे 6000 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो दे आर डूइंग दैट और इंडियन पीपल्स आर मोर स्किलफुल, दे आर डिवोटिंग, दे आर हार्ड वर्किंग ऑन दैट। और मोस्ट ऑफ देम आर, यू नो दैट महिला उसमें तो लेडीज है। ऑल साइंटिस्ट ऑफ चंद्रयान, मंगलयान, दे आर कोर ग्रुप्स आर ओनली लेडीज। द चेंजिंग इज देयर। तो 25 साल में हमारे देश का जो परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, we should observe with that, we should coincide with that, we should make tuning with that. क्या हमारे समाज में उस प्रकार के विषयों को लेकर हमको काम करने की आवश्यकता लगती है क्या? Some agenda should be put on that fulfilling the विश्व गुरु स्ट्रक्चर, विश्व गुरु एक प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा का मार्ग जो चल रहा है, उसमें हमारा काम बन सकता है क्या? हमारे मेघालय में उस प्रकार की चर्चा हम सामने ला सकते हैं क्या? क्या हमारे यहाँ पर कुछ मॉडल करते समय हमको ऐसा मन में लगता है क्या? Some people should come up and with new startup and their startup should be global. क्या हमको लगता है क्या कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग सामने आए, देश के युवा सामने आए, मेघालय के युवा सामने आए, नए स्टार्टअप बनाए जो दुनिया में चले? क्या हमारे लिए कुछ नए प्रकार के हम प्रोविजन बना सकते हैं क्या यहाँ के गरीबी को दूर करने के लिए? हमको मालूम है हमारे पहाड़ में अभी भी गरीबी, आज भी गरीबी है। बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। देयर एजुकेशन, हेल्थ, दैट मिनिमम प्रोविजंस आर नॉट फैसिलिटेटेड टू देम। क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? लोगों के जीवन में रोजगार देने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? दैट शुड बी आवर प्रीपोजिशन। कुछ नई चीजें हमको दुनिया में देने लायक बना सकते हैं। व्हाट शुड बी आवर न्यू फोकस? आज हम एक घर में गए थे तो हमारा फोकस का चर्चा यही चल रहा था। वी हैव मेनी टाइप ऑफ डिशेस। ट्राइबल में हर ट्राइब की अपनी डिश है, खाने का प्रकार है, बनाने का प्रकार है, उसका एक प्रकार से हेल्थ कॉन्शियस उसके साथ जुड़ा हुआ है। कैन बी प्रोवाइड दैट टू मेनी पार्ट ऑफ द नेशन विद वैल्यू एडिशन कर सकते हैं क्या? यहाँ पर मैं पिछले बार जब आया था तो आई मेड दैट ट्रीटी साउथ, हल्दी बनाने वाला टर्मरिक वाला जो मैडम है उनके वहां पर गया था। क्या हम ऐसे नए विषयों पर रीच कर सकते हैं क्या? मेघालय में आज की परिस्थिति में क्या परिवर्तन लाना, मेघालय में देश को आगे ले जाने के विषयों में हमारा योगदान क्या हो? व्हाट शुड बी आवर कॉन्ट्रिब्यूशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? मुझे लगता है उसका विचार करना ये ज्यादा आवश्यक है। जब हम तिरोध सिंह की पुण्यतिथि के बारे में स्मरण करते हैं तो तिरोध सिंह का बलिदान तो एक भाग है, लेकिन तिरोध सिंह की जरूर कुछ ना कुछ स्वप्न है। यस, कुछ सब ड्रीम्स हमारे सामने उन्होंने कुछ ना कुछ स्वप्न रखे। उस ड्रीम्स को पूरा करने वाला, उस ड्रीम को परिपूर्ति की तरफ ले जाने वाला समाज खड़ा करना ये हमारा दायित्व है। और हमारी नई पीढ़ी हमसे आगे जाए, इसलिए नई पीढ़ी के लिए बहुत नए प्रकार के विषय है।
उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मालूम होना चाहिए, उनको रोबोटिक्स मालूम होना चाहिए, उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है अभी केंद्र सरकार ने पुट न्यू स्कीम दिया, ड्रोन दीदी उनको नाम दिया ड्रोन दीदी। All ladies has given some incentives for that running drone system. Firstly for medical and agricultural purpose particularly. आगे बढ़ते जाने वाला क्या हमारे यहाँ पर ड्रोन की कोई सिस्टम हम लोग ले जाएंगे क्या? तो आज जो देश आगे जा रहा है और नेशन इज कमिंग फॉरवर्ड, जस्ट नंबर 1 नेशन की रेस में है, हम थर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हमको सेकंड इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाला समाज निर्माण करना है। उसमें मेघालय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट शुड बी आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट? कुछ हमारे समाज के कुछ विषय है मतलब है, तो ड्रग्स है, सुरक्षा का भाव है, हमारे समाज का इंटीग्रिटी है, हमारे समाज को तोड़ने के प्रकार आज भी चलते हुए दिखाई देते हैं। दे आर द डिवाइडिंग फोर्सेस, दे आर ब्रेकिंग फोर्सेस। क्या उसको दूर करने का काम कौन करेगा? जब हम फिरोज सिंह जी की एक प्रकार से स्मरण करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है हमारे सारे समाज को एक बनाकर एकत्रित करते हुए, कुछ मिशन के लिए खड़ा करते हुए, कुछ विषयों के लिए खड़ा करते हुए देश के साथ उस प्रकार के कदम का ऊपर चलने वाला समाज खड़ा करना, वही फिरोज सिंह के जीवन के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। मुझे लगता है इतना ही विषय आज के लिए पड़ेगा। वंदे मातरम सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत करवाले अबलाकिन माये तो बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी त्रिभुवनवारिणी मातरम वंदे वंदे मातरम तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हें मां शक्ति हृदये तुम्हें मां भक्ति तो प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि
मातुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की जय भारत माता की जय